میں ایک اکیلی کمزور لڑکی رات کی اس بحرن سنسان سڑکوں پر اکیلی تھی۔ دل بری طرح سے خوف میں مبتلا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سائے نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے، مگر وہ سایہ بھی میری رفتار کے ساتھ ہی بڑھتا چلا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ جیسے میں ایک موڑ پر پہنچی، اس سائے نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، اسی لیے میں واضح طور پر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے اپنے آپ پر ایک کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز گونج کر خاموش ہو گئی۔ وہ سایہ میرے قریب آیا، اس کی غلیظ نظریں میرے وجود کو چھیدنے لگی۔ اس نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی اور میں نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ پاؤں جیسے باندھ دیے گئے تھے۔ اس میں اس قدر طاقت تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک بار پھر چیخ ماری۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میری سانسیں تیز تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ایک خواب تھا، مگر اس خواب کا خوف اور وہ سایہ میرے دل میں گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ کل رات جو کچھ بھی میں اپنے بارے میں سوچ کر سوئی تھی، شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ میں یہ قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ میری مجبوری بن گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ صرف ایک خواب تھا، مگر اس خواب کا خوف میری حقیقت میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ خواب میری روز مرہ کی مشکلات اور خوف کی عکاسی کرتا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی حقیقی زندگی میں بھی اتنی ہی ہمت سے اپنے خوف کا مقابلہ کروں گی جتنا میں نے اس خواب میں کیا۔ میرا نام نیلوفر ہے اور یہ میری آپ بیتی ہے۔ میرے گاؤں میں غریبی ایک ایسی چیز تھی جو اس گاؤں کے ہر گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ میرے والد ایک مزدور تھے اور والدہ سلائی کا کام کرتی تھی، لیکن ہمارے گھر کی حالت ہمیشہ تنگ ہی رہی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہر دکھ اور سکھ کو میں زیادہ ہی محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھ میں اب سمجھ بوجھ آ چکی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں اور بھی تھیں جن کی ذمہ داریاں مکمل طور پر میرے کندھوں پر تھی۔ زندگی نے ہمیں کبھی آرام کا لمحہ نہیں بخشا، اور سب سے بڑی مصیبت اس وقت آئی جب میری ماں بھی سخت بیمار ہو گئی۔ علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ہر جگہ ناکامی ہاتھ آئی۔ میری ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک دن جب میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انتہائی مشکل فیصلہ کیا، جس کو میں کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ میری مجبوری بن گئی تھی۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جس سے میں اپنی ماں کا علاج کروا سکتی۔ یہ واحد راستہ تھا جس کو اپنانے پر میں مجبور ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کئی بار محنت سے حلال رزق کمانے کی بھی کوشش کی۔ ایک بار میں محلے کی ایک خالہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی شہر میں نوکری کرتی ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ کام دلوا دیں۔ وہ کہنے لگی کہ تیری ماں تو پہلے ہی بیمار رہتی ہے، اگر تم اسے چھوڑ کر جاؤ گی تو وہ کس کے سہارے پر رہے گی؟ میں ان سے کہنے لگی میری چھوٹی بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ابا کی موت کے بعد ہمارے گھر کمانے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ اماں تھوڑا بہت سلائی کا کام کرتی تھی، اب ان کی صحت بھی کافی متاثر ہو گئی ہے، ان کی بینائی کمزور پڑ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں نوکری کر کے اپنے گھر والوں کی کفالت کروں اور اپنی ماں کا سہارا بنوں۔ خدا کے واسطے اب میری اس مشکل وقت میں میری مدد کریں، اب جانتی ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسے ہی سیما گھر آتی ہے تو میں اس سے کہتی ہوں وہ تجھے اپنے ساتھ شہر لے جائے گی۔ میں ان کی بہت احسان مند تھی۔ میں رات کو گھر واپس آئی اور مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہی۔ میں آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ میرا پہلا قدم تھا جو میں گھر سے باہر نکالنے لگی تھی۔ اگلی صبح خالہ مجھے لینے آئی۔ سیما کو دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو، شہر کی بس نکل رہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر لی اور بیگ اٹھایا، اماں سے خدا حافظ کہا اور نکل آئی۔ سیما نے مجھ سے بہت مختصر لہجے میں بات کی اور کہنے لگی کہ امید ہے تم یہ نوکری کر لو گی، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ جو ہمارے باس ہیں ان کی کسی بھی بات کو تم نے ٹالنا نہیں ہے۔ اگر ان کو غصہ آ گیا تو وہ تمہیں 2 منٹ میں نوکری میں برداشت نہیں کریں گے۔ پہلے میں نے سمجھا کہ
शायद वो काम के बारे में मुझे समझा रही है, मगर उसकी बातों का मतलब कुछ और ही था। मैंने उसके साथ एक छोटे से कैफे में नौकरी के लिए दरखास्त दी। कैफे का मालिक रियाज बज़ाहिर एक नेक इंसान लगता था और उसने मुझे फौरन नौकरी दे दी। बल्कि चंद दिन मेरे लिए बहुत अच्छे गुजरे। मैंने ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया। शाम के वक्त एक बस यहाँ से हमारे गांव की तरफ जाती थी और हम लोग छुट्टी करके घर के लिए निकल आते। वो मुझे ढेर सारा खाना भी साथ देते और मैं घर वालों के लिए ले आती। मैं समझी थी कि शायद हमारे दिन बदलने लगे। मैं उस नौकरी से बेहद खुश थी कि उसने 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह मुकर्रर की थी और रात का खाना भी मुफ्त मिलता था जो मैं घर ले आती थी। सुबह भी सब लोग वही खाते। मगर जल्द ही रियाज की असल शख्सियत सामने आने लगी। वो जैसा दिखता था वैसा नहीं था। उसकी नजरें मेरे वजूद को छेदने लगी। क्योंकि मैंने खूबसूरती बेमिसाल पाई थी, मैं अक्सर दुपट्टा ओढ़े रखती ताकि अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकूं। मेरे साथ वहाँ पर कई लड़कियां काम करती थी जो मेरी तरह मजबूर होकर नौकरी करने आई थी। मगर रियाज मुख्तलिफ बहानों से मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगा। मैंने रियाज की नीयत को भांप लिया और उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी। एक शाम जब मैं कैफे के बाद वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी ताकि अपना लिबास तब्दील करके घर के लिए रवाना हो सकूं, रियाज ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने जोर जबरदस्ती की कोशिश की, मगर मैंने अपनी इज्जत की खातिर लड़ने का फैसला किया। मैंने रियाज को धकेल कर भगाने की कोशिश की, मगर वो पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी और उस शोर की वजह से करीब के लोगों ने रियाज को देख लिया था और उसे मुझसे दूर कर दिया। मेरी उम्मीदों का दिया बुझ गया। मैं समझ चुकी थी कि आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। मैंने अपना सारा सामान समेटा और बस स्टॉप पर आकर बस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वहां सीमा भी आ गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि तुमने बॉस की किसी बात को रद्द नहीं करना। मैंने सीमा को समझाते हुए कहा कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वो कहने लगी, ये तो वहाँ का फैशन है, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना तुम भूखी मर जाओगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं है और ना ही हमारी मेहनत की कदर की जाती है। लाख मेहनत करने के बावजूद भी हमें लोगों को उनके तरीके से खुश रखना पड़ता है। उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या ये दुनिया ऐसे ही चल रही है? ये सारी लड़कियां अपने घर इसी तरह से चला रही हैं। मुझे उस दुनिया से नफरत होने लगी। मैं घर आकर सीधा बिस्तर पर लेट गई। माँ ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, आज तुम खाना नहीं लाए? मैंने उनके हाथ पर चंद पैसे पकड़ाए जो उस वक्त मेरे पास मौजूद थे। मैं उस मक्कार इंसान के एहसानात को समझ ही नहीं सकी कि वो रोजाना मुझे पैसे क्यों देता है ताकि 4 दिन मुझ पर एहसान करके वो उन सब का बदला ले सके। फिर मुझे समझ आ गई कि कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। सारी रात मेरे आंसू ने मेरे तकिए को भिगोए रखा। अगली सुबह काफी देर तक मैं सोती रही। माँ मुझसे कहने लगी, उठ जाओ नीलोफर, नौकरी पर नहीं जाना। मैंने माँ से कहा कि वो नौकरी अब नहीं रही। माँ मुझे समझाने लगी कि पागल मत बन, यही हमारा आसरा है, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। मैं अम्मा से कहने लगी कि वो काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, अगर तू कमाएगी नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। माँ की इस बात ने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया। मैं जितना भी इनकार करती, माँ मुझे वहां भेजने पर मजबूर कर रही थी। माँ की मिन्नत समाजत के बाद मैंने खुद को राजी कर लिया कि मुझे अपने ज़मीर को ख़त्म करना ही होगा और मुझे ये नौकरी करनी होगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां के चौकीदार ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि अब आपको यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। ये शहर मेरे लिए नया था। मैं अपनी जानने वाली के साथ यहाँ आया करती थी। 1 हफ्ता ही गुजरा था, मगर मैं यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। मैं वापसी के लिए मुड़ी और बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। मेरी आंखें रोने की वजह से सुर्ख थी। मैंने अपने बैग को मजबूती से थामा हुआ था और बस का इंतजार कर रही थी। ये वक्त क्योंकि बस आने का नहीं था, इसी वजह से मुझे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। तभी तो लड़कियां आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उनसे कहा कि
मैं गांव से आई हूँ और बहुत मजबूर हूँ। एक जगह नौकरी करती थी मगर वहाँ के मालिक ने मुझसे बदतमीजी की। मैंने गुस्से में आकर वो नौकरी छोड़ दी, मगर फिर घर वालों ने मजबूर करके मुझे ये नौकरी करने पर रजामंद कर लिया। अब वो मुझे नौकरी पर रखने पर आमादा नहीं है। वो मुस्कुराई और कहने लगी, इसका मतलब है कि तुमने अपने ज़मीर को सुला दिया और वापस नौकरी करने के लिए आ गई। मेरी आंखों में एक कर्ब था। बार बार मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का वो चेहरा आता। उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते। वो अब काफी हद तक बीमार भी रहने लगी। फिर उसमें से एक लड़की जो निहायत खूबसूरत थी कहने लगी, जवान हो तुम, खूबसूरत हो, अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो, इस नौकरी से भी ज्यादा। वैसे भी यहाँ तुम्हें इस काम के सिर्फ चंद 100 रुपए ही मिलेंगे, मगर जो काम हम करते हैं वहां से तुम लाखों रुपए कमा सकती हो। शहर में एक जगह है हम जैसी गरीब और मजबूर लड़कियां जहाँ पैसे कमाती हैं। उनकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं उनसे कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे भी वहां लेकर चले, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीमार माँ घर पर मेरी मुंतजिर है और ये आस लगाए बैठी है कि मैं शाम में उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी। वो कहने लगी, ठीक है तो फिर चलो हमारे साथ। ये कहते हुए वो बस में बिठाकर मुझे अपने साथ ले गई। जब हम वहां पहुंचे तो उस इमारत को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू की महक थी और रंग बिरंगी लाइटों ने हमारा इस्तकबाल किया। आज वो दिन था जब मैंने अपने ज़मीर को सुलाया और शहर के उस बदनाम इलाके का रुख किया। रास्ते भर मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में बेशुमार सवालात। मैं उन लड़कियों की बात का मतलब समझ चुकी थी। जब मैं उस जगह पहुंची तो दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ पैर कांपने लगे। जो ही मैंने उस जिस्म फरोशी के अड्डे पर कदम रखा, एक अजीब सी खौफ की लहर मेरे बदन में दौड़ गई। हर तरफ अजनबी चेहरे, बेरहम नजरें और हवस भरे अल्फाज सुनाई देने लगे। लेकिन मैंने अपनी माँ के चेहरे को जहन में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए तो दिल में खौफ और आंखों में आंसू का समंदर था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वहाँ की नायिका ने मेरा जायजा लेना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में मुझे बेचने की हवस नजर आ रही थी। नायिका ने मुझे कोने में बिठाया और अपने ग्राहकों की फहरिस्त में मेरा नाम शामिल करने लगी। मेरी नजरें नीची थीं और मैं दिल ही दिल में अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ कर रही थी। आज सुबह अभी मैं उनको दवाइयाँ खिलाकर घर से निकली और अब मेरे पास एक पाई भी नहीं थी कि मैं उनके लिए कोई ग़िज़ा या दवाई ले सकती। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि कुछ भी करके मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना होगा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो आम इंसानों से मुख्तलिफ था। उसकी शख्सियत में एक अजीब किस्म का रोब था। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो सीधा नायिका की तरफ बढ़ा और बातचीत शुरू की। ये लड़की कौन है? उसने नायिका से पूछा। नायिका ने मेरी तरफ देखा और फिर अपनी मुस्कुराहट मजीद चौड़ी करते हुए बोली, ये बहुत खास है, इसका भाव भी खास होगा। ये सारे अल्फाज मेरे वजूद को छलनी करने के लिए काफी थे। उस शख्स ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। कितनी खास है? उसने दोबारा पूछा। नायिका ने एक बड़ी रकम का मुतालबा किया और आदमी ने बगैर कोई झिझक किए उस रकम को अदा करने की हामी भर ली। लेकिन उसकी आंखों में एक और अज़म था, जैसे कि उसने कोई और ही फैसला कर रखा हो। नायिका ने मुझे उठने का इशारा किया और मैंने खौफजदा नजरों से उस आदमी की तरफ देखा। वो शख्स मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथों को अपने मजबूत और गर्म हाथों में थाम लिया। आज रात तुम सिर्फ मेरी हो, उसने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हुक्म था जो किसी भी आम इंसान से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। नायिका ने पैसे गिने और हमें जाने का इशारा कर दिया। मैं जिनजादे के साथ बाहर निकल आई। मेरा दिल अभी तक धड़क रहा था। वो मुझे अपने साथ लिए जा रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आई थी और उस आदमी के साथ मेरी कहानी अभी शुरू हुई थी। मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो हमेशा अपनी इज्जत और एहतराम के लिए जाना जाता, मगर हालात से मजबूर होकर आज मैं उस इज्जत और भरम को अपने पैरों तले रौंद कर उस इलाके में आई थी। बचपन से ही मेरी मंगनी मेरे तायाजाद फैसल से हो गई थी। फैसल एक खूबसूरत और मेहनती लड़का था
और मैं हमेशा उसकी मोहब्बत और हिमायत पर भरोसा करती। लेकिन हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। अब हमारे हालात खराब होने लगे। मेरे वालिद की वफात के बाद हमारे खानदान पर माली मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम अपने रोजमर्रा के खर्चात पूरे कर सके। मोहल्लेदार और रिश्तेदार जो कभी हमारी तारीफें करते नहीं थकते थे, आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होने लगे। लोगों ने हमारे दरवाजे खटखटाना बंद कर दिए और हमें तन्हा छोड़ दिया। फैसल ने अपने वालिद से जिद की कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसके वालिद जो हमेशा से रिवायतों के पाबंद थे, इस बात को रद्द कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करे जो माली मुश्किलात में घिरी हो। उन्हें ये डर था कि अगर मेरी फैसल से शादी हो गई तो मेरी और मेरे घर वालों की सारी जिम्मेदारी फैसल पर आ जाएगी, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन सबके सामने फैसल के वालिद ने एक बेबुनियाद बात को मसला बनाकर हमारा रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की इज्जत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये रिश्ता बरकरार रखना नामुमकिन है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अपने घर वालों की खातिर कुछ कमाना चाहती हूँ और घर से बाहर निकलना मेरी मजबूरी थी। उस लम्हे का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। फैसल का चेहरा गम और गुस्से से सुर्ख था और मेरी आंखों में आंसू का सैलाब था। फैसल ने अपने वालिद से कहा, बहस की, लेकिन उन्होंने उसे खामोश करवा दिया और कहा, यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है और तुम्हें ये बात समझनी होगी। जब तक तुम्हारे चचा जिंदा थे, अपने घर की कफालत कर रहे थे, तब तक उनका घर भी एक इज्जतदार घराना था। जब उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी औरतों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम एक ऐसे खानदान के साथ रिश्ता जोड़े। उस दिन के बाद मेरी माँ के दिल को शदीद सदमा पहुंचा। वो दिल की मरीजा बन गई। वो हमेशा से एक मजबूत औरत थी, लेकिन ये सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिन ब दिन कमजोर होती गई और हमारे माली मसाइल ने उनकी हालत मजीद खराब कर दी। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि उनका इलाज करवा सकें, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे लिए ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा था जो अचानक बिखर गया। मैंने अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर चलाने का फैसला किया और वो रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन मेरी माँ की सेहत और हमारे खानदान की हालत ने मुझे एक इंतहाई मुश्किल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अभी भी जब मैं उस घटिया रास्ते पर निकलने लगी तो मेरे जहन के पर्दे पर फैसल की तस्वीर झलक रही थी। वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा था और उसके साथ जुड़ी उम्मीदें और ख्वाब मेरी आंखों के सामने टूटकर बिखर गए। मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान बरपा था। दिल में गम और आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी माँ और बहनों के लिए मुझे खुद को मजबूत बनाना था। सुबह मैंने अपनी माँ के पास बैठकर उसे कहा, माँ, मैं काम के लिए जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और मेरी बहनों का भी ध्यान रखना। मेरी माँ ने मेरी आंखों में देखकर एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि मैं किस कदर मजबूर हूँ, लेकिन उसने मुझे हौसला दिया, बेटा तुम्हें जो करना है करो, बस अपने आप को महफूज रखना। मेरी 4 छोटी बहनें जो भी बचपन की दहलीज पर थी, हैरान नजरों से मुझे देख रही थी। उन्हें मेरी बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में वो दर्द देख लिया था जो मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनको गले लगाकर अपने दिल में यह वादा किया कि मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी। जब मैंने गांव से निकलने का इरादा किया तो हर कदम मेरे लिए भारी था। रास्ते भर मेरे जहन में फैसल की यादें, माँ की मोहब्बत और बहनों की मासूमियत गर्दिश करती रही। आज इस शहर का सफर मेरे लिए निहायत कठिन था और दिल में खौफ और शर्मिंदगी का बोझ था। आखिरकार जब मैं शहर के उस बदनाम इलाके में पहुंची तो वहां का माहौल मेरी तवक्कुआत से बदतर निकला। हर तरफ अजनबी चेहरे, बेरहम नजरें और हवस थी। मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन माँ और बहनों की हालत याद करके मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। जब उस नायिका ने मेरी रकम वसूल कर ली और मुझे उस आदमी के साथ जाने के लिए कहा तो मैंने उससे पूछा कि मुझे कितने वक्त के लिए लेकर जा रहे हो। वो कहने लगा कि इस बात का भी फैसला नहीं हुआ, मगर मैंने तुम्हारी एक भारी रकम अदा कर दी है।
अगर मैं तुम्हें सारी रात भी रोके रखूं तो वो भी उससे ज्यादा है। मैं उससे कहने लगी, लेकिन मैं रात भर आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ, मगर कुछ घंटे आप मेरे साथ गुजार सकते हैं। आज की रात मेरे लिए पहली रात थी और ये रात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मुझे कोई इल्म नहीं था कि इस तरह के ग्राहकों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है। मैं इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थी और ना ही मुझे उन लड़कियों से कुछ सीखने का मौका मिला। मैं जैसे ही ऐसे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंची तो फौरन मुझे कबूल कर लिया गया। मेरे चेहरे पर एक मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी तरफ माइल कर लेती कि वहां जाने के अगले ही लम्हे मेरा ग्राहक मुझे लेने पर रजामंद हो गया था। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठी। पसीने से मेरे हाथ भीग चुके थे। मैं बहुत नर्वस थी। उसने एक नजर मेरे सारे वजूद पर दौड़ाई और कहने लगा कि क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो? पहले कभी मैं तुम्हें यहाँ पर देखा नहीं था। मैं उससे कहने लगी कि हाँ, मैं बहुत मजबूरी के तहत यहाँ आई हूँ। मैं पेशे से कोई जिस्म फरोश नहीं हूँ। ये सुनकर उसकी नजरों में एक अजीब सा तासुर वाज़े हुआ, मगर वो सारा रास्ता खामोश रहा। ये गाड़ी एक बंगले के सामने आकर रुकी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे नीचे उतरने को कहा। मैं खुद को समेटती हुई बाहर निकली और एक नजर उस खूबसूरत बंगले पर डाली जो अपनी पूरी शान और शौकत से खड़ा था। वो मुझे अंदर ले आया। सारा घर बहुत वसी था। चारों तरफ खूबसूरत फर्नीचर पड़ा हुआ था और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसने मुझे एक कमरे की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ चलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं कांपते हुए कदमों के साथ उस कमरे में आ गई। कमरे में एसी चल रहा था। बहुत ठंडक का एहसास था। मैं सोफे पर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने अगला लम्हा मुझ पर कौन सा क़यामत ढाने वाला था। मैंने जिंदगी में पहली बार ये कदम उठाया था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें वो बहुत ही लजीज खाना था। उसने मेरे सामने वो खाना रख दिया। मैं उससे कहने लगी कि इसकी जरूरत नहीं थी। वो कहने लगा, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुमने इस तरह से कुछ भी नहीं खाया। तुम आराम से खाना खा लो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा तुम समझ रही हो, इस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आया। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। अगर वो मुझे इस मकसद के लिए अपने साथ लेकर नहीं आया था तो मुझसे क्या करवाना चाहता था? मैं उससे कहने लगी, इस बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, तुम आराम से खाना खाओ, हम फिर बैठकर बात करते हैं। मैं सारे दिन की भूखी प्यासी थी। मैंने जल्दी जल्दी वो ट्रे साफ कर दी। उसने फिर फ्रिज से एक मशरूब निकाला, गिलास में थोड़ी सी बर्फ डालकर मेरे सामने पेश कर दिया। वो नीले रंग का मशरूब था। आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उससे कहने लगी कि मुझे कोई भी ऐसी चीज मत देना जिससे मुझ पर मदहोशी तारी हो। वो कहने लगा, घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हिचकिचाते हुए उससे कहने लगी, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, इसी वजह से मैं घर जाना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी करना है बस जल्दी से कर लें। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने ये अल्फाज अदा किए। उसने कहा, पहले ये खत्म करो, हम बाद में बात करते हैं। मैं ना चाहते हुए भी वो मशरूब पी चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में बिस्तर पर मौजूद थी। मैं जहन पर जोर देना चाहती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों को देखने लगी और आसपास की चीजों का जायजा लेकर इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि गोया मैं घर में हूँ या कहीं और। कल रात का वाकया मेरे जहन के पर्दे पर नाचने लगा। मैं तो उस आदमी के साथ गई थी, फिर यहाँ कैसे पहुंची? उसे तो मेरे घर का पता भी मालूम नहीं था और रात के किस पहर में यहाँ आई थी। भारी कदमों के साथ बमुश्किल सैन तक का सफर करके बाहर निकली। अम्मा, मैंने अम्मा को आवाज दी तो वो कहने लगी, उठ गई मेरी प्यारी बेटी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं उनसे कहने लगी, अम्मा, मैं घर कैसे आई थी? अम्मा कहने लगी, ये तो मुझे भी नहीं पता तू रात के किस पहर घर आई थी, मगर जब सुबह मैंने उठकर देखा तो तुम अपने बिस्तर पर ही मौजूद थी। मैं सोच रही थी कि जब तू उठेगी तो तुझसे पूछूंगी कि रात किस वक्त वापस आई थी। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान हो गई।
मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि मैं किस वक्त वापस आई थी और यहाँ तक कैसे पहुंची थी। मैंने अपने जहन पर बहुत जोर देने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। और अगर इस बात का किसी के पास जवाब था तो वो वही शख्स था जो मुझे वहां से लेकर गया था, और मुझे अब दोबारा उस शख्स से मिलना था। इसीलिए जैसे ही शाम हुई तो मैं शहर के लिए निकल आई। अम्मा ने मुझे रोका भी और कहा कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम ना जाओ। लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया और कहा कि जरूरी काम है, जाना जरूरी है, इसीलिए घर से निकल आई। सारा रास्ता मेरे जहन में उस शख्स का चेहरा और उसकी मेहरबानी झलकती रही। समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे क्या चाहता था। आखिर उसने मेरी कीमत अदा की थी और अच्छी खासी रकम दी थी, फिर उसने मेरा इस्तेमाल भी नहीं किया, मुझे खैर आफियत से घर पहुंचा दिया। आखिर वो कौन था? इतना मेहरबान और नरम शख्स कौन हो सकता था? मैं अपने गुमान में सोचती रही, और जब उस अड्डे तक पहुंची तो उस नायिका ने भी बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अरे तेरे उस आशिक ने इतनी जल्दी छोड़ दिया तुझे? मुझे तो लगता था इतनी भारी रकम दी है तो काफी दिन तक तुझे अपने साथ रखेगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रही और उससे कहा, नहीं, मैं तो रात को घर चली गई थी, आज कोई काम है? मैंने किधरे झिझकते हुए उससे पूछा तो वो कहने लगी, हाँ काम तो है, तुम अभी कुछ देर इंतजार करो, मैं बताती हूँ। मैं वहीं एक तरफ बैठ गई, लेकिन अभी मुझे बैठे कुछ देर ही गुजरी थी कि वही कल रात वाला शख्स सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मैं एकदम से ठटक उठी और बेइख्तियारी कैफियत में उसकी तरफ बढ़ी और कहा, आपने रात को मुझे घर कैसे भेजा? मैं जब सोकर उठी तो अपने बिस्तर पर मौजूद थी, आखिर आपने ऐसा क्या किया था? मैं उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी और वो मुस्कुरा दिया। वो मुझे कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, जबकि मैंने तो तुम्हारी कीमत अदा कर दी थी। उसने मुझसे पूछा तो मैं सिर्फ इतना कह सकी कि मैं अगर काम नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। बहुत मजबूरी के आलम में निकली और गुजारा कर रही हूँ। अगर काम नहीं करूंगी तो गुजारा नहीं होगा, माँ का इलाज नहीं होगा। मैंने उस शख्स को अपनी मजबूरी के बारे में बताया। वो कुछ चुप हो गया और कहने लगा, तुम बाहर जाकर मेरी गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं फौरन बाहर की तरफ लपकी, जैसे किसी कैद से आजाद हुई हूँ। मुझे उम्मीद हो गई थी कि वो जरूर मेरी मदद करेगा, क्योंकि उसकी चौड़ी पेशानी उसके किसी आला खानदान से होने को जाहिर कर रही थी, और अगर वो यहाँ आता तो यकीनन उसके पीछे तो बहुत बड़ी वजह थी। मैं गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वो कुछ ही देर में वापस आ गया और कहने लगा, मैं एक जिन ज़ादा हूँ और मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। मैं इस बदनाम इलाके में सिर्फ इसी वजह से आता हूँ कि तुम जैसी मजबूर लड़कियों की मदद कर सकूं। उस शख्स की बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जिन्नज़ाद हो सकता है। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती जा रही थी। यकीनन इसीलिए उसके दिल में इतना दर्द था और इसीलिए उसने इतनी भारी रकम अदा करके मुझे कल यहाँ से छुड़वाया था। मुझे नहीं मालूम कि आज इसके अंदर क्या बात हुई क्या नहीं, लेकिन वो मुझे कहने लगा, अगर तुम्हें काम की तलाश है तो मैं तुम्हारे लिए कोई मुनासिब काम देखूंगा, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर मत आना। इसके साथ ही उसने कुछ रकम मेरे हाथ पर रख दी और कहने लगा, ये रकम अपने पास रखो, ये तुम्हारे खर्चात के लिए है, और जब तक मैं न कहूँ तुम यहाँ नहीं आओगी। उसकी बातों को मैंने गौर से सुना। वो मेरे फायदे की बात कर रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसे इलाकों में क्या होता है, किस तरह लड़कियां लाई जाती हैं और किस तरह उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। मैं चुपचाप वो रकम रख चुकी थी, क्योंकि उससे इनकार करके मैं क्या जताती, जबकि वो मेरी इतनी मदद कर रहा था। तो ये रकम भी उसने किसी वजह से ही दी थी, इसीलिए खामोशी से वो रकम रखकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो शख्स कहने लगा, मेरा नाम वजदान है और मुझे अपनी माँ की रिपोर्ट्स दो ताकि मैं पता करूं कि उन्हें क्या बीमारी है और उसका इलाज उसी तरह करवाया जा सके। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी माँ का इलाज करवाने की हामी भरेगा, इसीलिए बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने उसे कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जिस तरह मेरी मदद की है वो मैं कभी नहीं सोच सकती कि कोई गैर मेरी इस तरह मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैंने नम आंखों के साथ उसका शुक्रिया अदा किया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया और कहने लगा, एक तो तुम शुक्रिया बहुत अदा करती हो
रोने लगती हो, अब अपने घर जाओ और दोबारा से इस इलाके में ना आना। उसके कहने पर मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी से उतरकर अपने गांव जाने वाली मतलूबा बस पकड़ी और घर के लिए निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक जिन ज़्यादा इतना मेहरबान होगा कि वो मुझे इस मुश्किल से निकाल लेगा। जिस तरह उसने मेरी मदद की कोई भी ना करता। मैं बहुत मुतमईन थी और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अम्मा का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और वो यकीनन मेरे काम के लिए भी कोई बंदोबस्त करेगा। मैं अब घर पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। उसने जो रकम दी थी वो अच्छी खासी थी। उसके साथ हमारे काफ़ी दिन आसानी से गुजर सकते थे और अभी भी हमसे गुजारा ही हो रहा था। अम्मा ने मुझसे 2-3 बार काम का पूछा भी तो मैंने यही कहा कि अभी काम नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि घर पर बैठे, जैसे ही काम होगा हम खुद बुलवा लेंगे। अम्मा भी चुप कर गई। क्या करती, अब कितनी दफ़ा मुझे मजबूर करके घर से बाहर निकालती। वो तो रकम थी, उसी वजह से गुजारा हो रहा था, इसीलिए अम्मा ने भी दोबारा नाम नहीं लिया। वजदान को मैंने अम्मा की रिपोर्ट्स भिजवा दी थी। उसने जल्दी एक बहुत बड़े डॉक्टर से वक्त लेकर उस दिन पहुंचने के लिए कहा था। आज हमें उसी डॉक्टर को चेकअप करवाने जाना था। अम्मा बेहद घबराई हुई थी। उनका कहना था कि इतना महंगा डॉक्टर है, क्या जरूरत थी उसके पास टाइम लेने की। वो दवाइयां भी महंगी लिख कर देगा तो हम कहाँ से पूरी करेंगे। जबकि मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहा कि एक भला मांस शख्स आपके इलाज करवाने की हामी भर रहा है और सारा खर्च वही उठाएगा, इसलिए आप इस सिलसिले में बेफिक्र रहें। अम्मा को थोड़ी तसल्ली हो गई और वो मुतमईन होकर डॉक्टर को चेक करवाने लगी। उस डॉक्टर के सारे सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए जिसकी वजह से मुझे भी तशवीश थी, लेकिन शुक्र है कि वो टेस्ट अच्छे आए। ताहम डॉक्टर ने 2 माह दवाई खाने का बोल दिया। अम्मा को लेकर जब मैं घर पहुंची तो उस वक्त थकावट शदीद हो चुकी थी। वजदान से मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन मैंने गायबाना तौर पर उसका शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो उस मुसीबत में हमारे काम आया था, जिसने बेगर्ज और बेलौस होकर हमारी मदद की थी। मैं अब घर पर ही होती और वजदान की तरफ से काम की मुंतजिर थी कि एक दिन वो हमारे घर पर चला आया। उसे देखकर मेरी बहनें और अम्मा बेहद हैरान हुए। इतना खूबसूरत और शान और शौकत रखने वाला शख्स हमारे दरवाजे पर खड़ा था। अम्मा के पास तो जगह नहीं बन रही थी कि वो उसे कहाँ बिठाएं। ताहम उसके अंदर कोई भी तकब्बुर या गुरूर नहीं था। वो बड़े आराम से आकर चारपाई पर बैठ गया और अम्मा से उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा और फिर उसने मुझे मुखातिब करके कहा, नीलोफर, मैंने आपके लिए काम देखा है, आप उम्मीद है वो कर लेंगी। उसके बाद मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई और फिर उसने मुझे काम की तफसील बताई, जिसे सुनकर मैं बेहद खुश हुई, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा था और मैं सुकून से कर सकती थी। उसका कहना था कि उसकी एक फैक्ट्री है जहाँ पर खवातीन कपड़ा बनाती हैं और उन्हें सिलाई करती हैं। मुझे वहाँ पर उनकी निगरानी के लिए बैठना था और उसके बदले वो मुझे माकूल रकम दे रहा था, जबकि अम्मा ने उससे अपने लिए बात कर ली। उनका कहना था कि मैं सिलाई का काम जानती हूँ, तो क्या मैं वहाँ बैठकर सिलाई कर सकती हूँ। वजदान ने बड़ी खुशदिली से अम्मा से हामी भर ली और कहने लगा, बिल्कुल, आप भी वहाँ पर आकर काम कर सकती हैं ताकि आप मसरूफ रहें और आपका जिस्म मुतहर्रिक रहे। अम्मा उसे बेसाख्ता दुआएं देने लगी। अगले दिन वजदान की गाड़ी हमें लेने के लिए आ गई। वो एक कंपनी की गाड़ी थी और सारे वर्कर्स को ये गाड़ी ही लेने जाती थी। मैं और अम्मा फैक्ट्री चले गए। फैक्ट्री क्या थी, बहुत बड़ा यूनिट था। यहाँ पर हजारों औरतें काम कर रही थी। मैं और अम्मा देखकर दंग रह गए। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वजदान इतना अमीर होगा और मैंने अपनी हैरत का इजहार उसके सामने भी कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कहका लगाकर हंस दिया और कहने लगा, अरे नहीं, ये सब तुम जैसी औरतों की दुआओं का नतीजा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इस बदनाम इलाके में सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि वहां पर ऐसी मजबूर औरतों को निकाल कर ला सकूं जो जबरदस्ती वहां पर हैं। अगर तो कोई अपनी खुशी से ये काम कर रहा है तो मैं उसे वहां से निकलने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मजबूरी में कर रहा है तो मैं उसे वहां रहने नहीं देता,
یہ سب وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اپنے گھر والوں کو پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے یونٹ میں ایسی عورتوں کو لگایا ہے اور اب وہ یہاں پر عزت سے عزت کی روٹی کما رہی ہیں۔ وجدان کی تفصیلی بات سن کر میں اسے بڑی سراہنے والی نگاہ سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اب تو مجھے بھی یہاں پر کام دو اور مجھے امید ہے کہ میں اچھا کام کروں گی۔ وجدان نے میری نگاہوں میں دیکھا تو بے ساختہ میں سر ہلا گئی اور اس دن کے بعد سے میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں بھول گئی تھی کہ میں کس علاقے میں ہوں اور یہ بھی بھول گئی تھی کہ کام کی غرض سے میں کس بدنام علاقے میں چلے گئے تھے۔ میں نے اب اس یونٹ کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا اور یہاں پر کام کرنے لگی۔ میں یہاں پر کام کر کے بہت مطمئن تھی۔ وجدان اپنی ورکرز کا بہت خیال رکھتا، ان کی ہر دکھ سکھ بیماری اور تکلیف میں انہیں اضافی رقم بھی دیتا اور ان کا ساتھ دیتا۔ اسی لیے مجھے یہاں پر کام کر کے بہت اطمینان حاصل تھا۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا میں وجدان کے پاس کام کر رہی تھی کہ ایک دن اماں کہنے لگی، اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، میری صحت بھی ٹھیک ہے اور میں خود بھی وہاں پر اچھا خاصا کام کر لیتی ہوں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں؟ اماں نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اماں، شادی اور میری؟ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، میں نے اماں سے صاف کہہ دیا، جبکہ اماں کہنے لگی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، اس طرح میں کب تک تمہیں گھر پر بٹھائے رکھوں گی؟ لوگ یہی کہیں گے کہ بیٹی کی کمائی کھانے کی خاطر اس کی شادی نہیں کر رہی۔ لیکن میں نے اماں کو صاف منع کر دیا۔ شادی کے نام پر سے پھر سے فیصل کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آنے لگا اور مجھے اس کی بے رخی کا دکھ ستانے لگا۔ یوں تو ابھی تک فیصل کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اسے کیسے بھلا سکتی تھی جس کے ساتھ بچپن سے میرا رشتہ طے تھا اور اس کی محبت میرے ساتھ پروان چڑھی تھی۔ اماں نے آج پرانے زخموں کو ادھیر دیا تھا، اسی لیے ساری رات ان زخموں کو سیتے ہوئے گزر گئی۔ اگلے دن میری سوجی آنکھیں دیکھ کر اماں بھی خاموش ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد سے اماں نے شادی کا دوبارہ نام نہیں لیا۔ تاہم اس بات کے تقریباً 1 مہینے بعد جب ایک دن میں گھر واپس آئی تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ سامنے ہی فیصل بیٹھا ہوا تھا، اس کو جیسے میرا ہی انتظار تھا۔ اس نے میری آہٹ کو پا لیا تھا اور بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ میرے قدموں نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ تقریباً 2 سال بعد فیصل کو دیکھا تھا اور اس کی محبت آج بھی میرے دل میں اسی طرح موجود تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جبکہ وہ ایک دم اٹھ کر میری طرف آیا اور کہنے لگا، نیلوفر، مجھے معاف کر دو، میں اس وقت ابا کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکا، لیکن اس دن سے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں تمہیں یاد نہ کیا ہو، جب میرے دل نے تمہارا ساتھ نہ مانگا ہو۔ آج میں وہ ساری رکاوٹیں دور کر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میرے ہاتھ کو چھوڑنا مت، مجھے نہ مت کرنا۔ فیصل کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی، اور اب جب اس نے شادی کی بات کر دی تو میری تو حیرت 2 چند ہو گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ خود بھی خاموش تھی، انہیں بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فیصل کی بات پر یقین کیا جائے یا نہیں۔ میں چپ چاپ آگے بڑھائی، فیصل کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ تاہم اندر آ کر میں نے اسے صرف اتنا ہی کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور میرا ساتھ تمہارے لیے بہت عام ہے، لیکن تمہارے ابا جس طرح عورتوں کو ذلیل کر کے اور دھتکار کر یہاں سے گئے تھے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے ابا کو لے کر آؤ اور دوبارہ سے میرا رشتہ مانگو، پھر ہی میں تم سے شادی کروں گی، ورنہ میری طرف سے انکار سمجھو۔ میں نے خودداری اور نسوانیت کو بلند کرتے ہوئے فیصل سے جب یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اسے جیسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں اسے یہ شرط رکھ دوں گی۔ تاہم وہ چپ چاپ چند لمحے کھڑا وہاں پر مجھے دیکھتا رہا، اور جب میرے چہرے کے پتھریلے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہرا سانس بھرا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی کہ پیچھے سے اماں کی آواز سنائی دی، نیلوفر، مجھے تجھ پر فخر ہے، تو نے ایک عورت ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اماں کے یہ الفاظ میری نظروں میں مجھے بڑا کر گئے، لیکن فیصل کے یوں انکار کرنے سے جو میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، جو میرا دل زخمی ہوا تھا، اس کے لیے تو مجھے رونا آیا تھا اور آج کی رات ماتم منانا تھا۔
تو ساری رات میں خود کو سنبھالتے ہوئے گزار چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی فیصل پلٹ کر آیا تھا، کیونکہ اس کے ابا رشتے پر نہیں مانے تھے، اور میرے انکار کے 3 مہینوں بعد فیصل کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اس دن میں نے آخری بار اس کا سوگ منایا تھا۔ اب میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اپنی بہنوں کو پڑھانا لکھانا ہے اور کسی مقام پر پہنچ جانا ہے، تاکہ کل کو وہ میری طرح کام کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور نہ ہی اس بدنام محلے میں جا پہنچے جہاں کوئی شریف عورت گزرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اماں میری بات سمجھ گئی تھی، اب مجھے ان کا ساتھ حاصل تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر وجدان ہماری اتنی مدد کر رہا تھا، ہمارے ساتھ تھا، تو ہمیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت تھی؟ آج اس یونٹ میں کام کرتے ہوئے مجھے 10 برس گزر چکے تھے۔ میں نے شادی نہیں کی، میری بہنوں کو پڑھا لکھا کر میں نے اس قابل بنا دیا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اور اب ان کے لیے رشتے خود گھر تک آ رہے ہیں، اور میں اور اماں بے حد خوش ہیں۔